Good morning, students. Today I am going to start our fourth chapter from the book Moments, and it is Ishwaran the Storyteller. It is written by R.K. Lakshman. So, before starting our chapter, I am going to introduce you to the author of this chapter, R.K. Lakshman. R.K. Lakshman was an Indian cartoonist, illustrator, and a humorist also. He was best known for his creation, The Common Man, and for his daily cartoon strip, You Said It. And he got many awards in his life. He got Padma Shri, Padma Bhushan, Raman Magsaysay Award, and many others also. So, I'm going to tell you about this story at first. This story, Ishwaran the Storyteller, revolves around a junior construction supervisor, Mahendra, and his domestic help, Ishwaran. He is fond of telling exaggerated stories to his master. One evening, Ishwaran tells Mahendra a ghost story which Mahendra doesn't believe. But on working at night, he thinks that he saw a ghost and he gets disturbed, decides to leave the place the next day. And there are two characters in the story. One is Mahendra. He is a credible construction supervisor who gets scared by a ghost story told by Ishwaran. And second character is Ishwaran. He is a wonderful cook, domestic help, and he scares his own master with his ghost story. So at first I will give you a short outline of the story, then you will come to understand it easily. Mahendra was a junior construction supervisor in a firm. His job was a supervisor, the work at a construction site. Once the job would be over, he used to be shifted to another construction site. Thus, the nature of his job was to move from one place to another place. महिंद्रा जो था, जो कि कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र था, उसकी जॉब क्या थी कि वो हमेशा जो है एक जगह से उसकी जॉब जो है ट्रांसफरेबल थी. कभी जो है उसको एक फर्म में जो है वो था सुपरवाइज़र, कभी उसको जो है किसी एरिया में भेज दिया जाता था सुपरविजन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, कभी उसको किसी टाउन में, कभी डेजर्ट एरिया में, कभी जो है पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में. तो उसकी जो जॉब थी वो हमेशा ट्रांसफरेबल थी और वो जो है इसी तरह से एक्टिविटीज़ अपनी करता रहता था. नाउ ईश्वरन, who is an amazing servant and entertainer. Mahendra's needs were simple as he was a bachelor. He had kept a servant named Ishwaran for domestic work. And Ishwaran followed Mahendra without any complaint. He cooked for Mahendra, washed his clothes and cleaned his shelter. जो ईश्वरन था, जो उसका सर्वेंट था, वो उसकी डोमेस्टिक हेल्प करता था. और दूसरी बात यह है कि वो कभी भी उसने कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि जब भी महिंद्रा को जो है अपनी ट्रांसफ़र के दौरान जाना पड़ता था कहीं भी किसी भी एरिया में, वो हमेशा उसके साथ जाता था और वो कभी भी जो है इसके लिए कंप्लेंट नहीं करता था. उसके कपड़े धोता था, उसका खाना बनाता था और भी वो जो सारे जो है घर के काम करता था. एंड ही read Tamil thriller stories, and this affected to him so much that even a small incident like a fallen tree appeared to him a bushy waste. Ishwaran described everything in detail and weaved a new story full of thrill and horror up to Mahendra every day. He was a best creator and entertainer also, Ishwaran. He used to tell his master entertaining stories which are full of thrill and horror. और उसको अगर कोई जो है पेड़ के बारे में, इफ़ ही सेज दैट आई सो अ ट्री, ह्यूज ट्री ऑन द रोड, वो जो है उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेगा, देयर वाज अ ह्यूज बीस्ट
वहाँ पर जो है एक बड़ा भारी जो है बीस्ट था, जो कि कौन है, एक पेड़ है। सो उसका जो एक्सप्रेसिव वे था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, जिससे जो है कहानी में एक अलग ही जो है रोमांच आ जाता था। एंड ही प्लेड द रोल ऑफ अ टीवी इन प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट टू महेंद्रा। वो जो है एक टीवी का भी रोल प्ले करता था उसके लिए, क्योंकि वो जो है पूरा उसका एंटरटेनमेंट करता था। एंड इन दिस स्टोरी ईश्वरन टेल्स हिज मास्टर अ स्टोरी ऑफ अ Tusker who was a wild elephant. Once Ishwaran told Mahindra a story about his school days, describing a Tusker wild elephant and how he behaved when he got mad. And the Tusker escaped out of a timber yard, destroying everything that came in his way. It entered Ishwaran's school also. And everyone there was very terrified, but not Ishwaran, because Ishwaran was very shows himself very brave, very bold also. When he was a child, when when a wild elephant came into his school, he didn't get terrified by it. Everyone was terrifying with the wild animal, but he was not terrifying. He faced the animal very bravely. And how he tells this thing, he tells that he hit sharply with the cane onto the third toe of one foot of the elephant and it shivered and collapsed. अब वो क्या कहता है कि मैंने उसके पैर के जो है तीसरे नेल पर एकदम से जो है लाठी तेज से मारी, और इससे वो क्या होता है, कप कपा करके नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। At this point, Ishwaran would leave the story and Mahendra remained in a dangling situation. And after that, one day Ishwaran narrates a story of a ghost, and there was a great reaction of Mahendra for this story. On another occasion, one auspicious day, he weaved a story about a ghost woman holding a fetus in her hands on a full moon night. What he tells that कि एक बार उसने एक कहानी सुनाई जो कि किसकी थी, कि एक औरत जो है अपने हाथ में एक भ्रूण, फेटस क्या होता है, भ्रूण, बिल्कुल छोटे से बच्चे का जो है वो लिए हुए थी। और दूसरा क्या बताता है कि इट वॉज अ फुल मून नाइट. Mahindra asked him to stop telling him such nonsense stories, as Mahindra didn't believe in ghosts and there are no such type of figures. महेंद्र उसको बोलता भी था कि भाई तुम इस तरह की कहानियाँ मुझे मत बताया करो, क्योंकि मुझे ये नॉनसेंस पसंद नहीं है और घोस्ट वगैरह कभी होते ही नहीं है. बट ईश्वरन नेवर माइंडेड. ही यूज्ड टू टेल हिम घोस्ट स्टोरीज. After a few days, Mahindra was woken up by some noise near his window during the night. First thought that it was some sort of small animal like a cat, but the noise became louder and louder. When he peeped through the window, he thought that he saw a cloudy figure. जब वो उस महेंद्रा जो है अपने कमरे में कुछ आवाज़ें सुनता है, जैसे बिल्ली के बोलने की आवाज़ें हैं, और वो फिर जो है खिड़की से बाहर रात को झांक करके देखता है तो उसको जो है क्या दिखाई देता है, क्लाउडी फिगर दिखाई देता है, विच वॉज क्लचिंग अ बंडल नियर हिज विंडो सिल. महेंद्रा कुड नॉट स्लीप एनी मोर दैट नाइट. जब महेंद्रा ने ये देखा कि जो है कुछ ऐसा फिगर है, एक बड़ा भारी भरकम सा कोई व्यक्ति जो है उसको दिखाई दे रहा है और अजीब सा, जिसके हाथ में जो है एक बंडल जैसा कुछ है, तो वो पूरी रात सो नहीं पाया. ही ऑल्सो गॉट फियर्ड. इन द मॉर्निंग ईश्वरन स्माइलिंगली आस्क्ड अबाउट द साउंड एंड द विमेन घोस्ट. लेकिन सुबह जो है ईश्वरन उसके पास आता है और उससे बड़ा हंस करके पूछता है कि रात को घोस्ट दिखाई दिया है, नहीं दिखाई दिया. He also complained about how Mahindra had chided him for other day
महिंद्रा वॉज सो अपसेट दैट ही रिजाइंड हिज साइट जॉब एंड इमीडिएटली। और इस बात पर महिंद्रा जो है इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि उसने अपनी इस साइट जॉब से जो है रिज़ाइन ही कर दिया। इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जो है रिज़ाइन कर देता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम आवर फर्स्ट पॉइंट। थॉरोली वी विल रीड इट। One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात महेंद्र जो है वो सोया हुआ था और जब वो अपनी नींद से उठता है तो उसको बाहर क्या दिखाई देता है, एक बड़ी डार्क जो है क्लाउडी फॉर्म नज़र आती है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, उसको जो है बड़ा एकदम से पसीना आ जाता है। क्या ये एक भूत था? We will confirm this point in this story. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahindra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. अब ये जो स्टोरी है वो किसके द्वारा नरेट की जाती है? वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। एक यंग मैन के द्वारा जो है गणेश को बताई जाती है। महिंद्रा बाय नेम, जिसका नाम क्या है? महेंद्र। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर, जो कि एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फॉर्म में, और उसको जो है ऑफ़र किया जाता था कि वो जो हायर सुपरवाइजर जो उसके टास्क थे उसके लिए उसको जो है जगह जगह भेजा जाता था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों को चेकआउट करने के लिए उसको जो है भेजा जाता था। सो हिज जॉब वॉज ट्रांसफरेबल। महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महिंद्रा की जॉब क्या थी कि वो सिर्फ देखता रहता था कि वर्क साइट्स पर जो है किस तरह से काम चल रहा है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। और उसको जो है हमेशा ऐसे ही जो है जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे उसके हेड ऑफिसर्स जो है उसको अलाउड करते थे, उसको जो है ऑर्डर देते थे, वो उनको फॉलो करता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कभी जो है कोल माइनिंग एरिया से जो है रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और उस पर कुछ महीने देख रेख करने के बाद जो उसको केमिकल प्लांट्स की तरफ भेज दिया जाता था। एंड विच वॉज कमिंग अप समवेयर, और वहाँ से जो है कहीं और जो है उसको भेज दिया जाता था। सो ही यूज्ड टू मूव फॉर हिज जॉब प्लेस टू प्लेस। ही वॉज ए बैचलर, वो एक कुंवारा व्यक्ति था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओड कंडीशंस। उसकी आवश्यकताएं बहुत ही साधारण थी और उसको ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। हर तरह की कंडीशन में, हर तरह की सिचुएशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, भले ही जो है कोई बुरी तरह से इल इक्विप्ड मीन्स नॉट हैविंग प्रॉपर फैसिलिटीज़, ऐसे घर में जिसमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी वो उसमें भी एडजस्ट कर लेता था। और ऐसी जगह पर जहाँ पर टेंट लगाना पड़ता था, स्टोनी पत्थर जो है ऊंचा नीचा एरिया है, हिली एरिया है, जहाँ पर जो है टेंट लगा करके रहना पड़ता था, वहाँ पर भी जो है वो आसानी से एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक ऐसा एसेट था जो कि उसका कुक था, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड। नाउ द कुक, ईश्वरन, सेकेंड कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी इज इंट्रोड्यूस्ड हियर। The cook was quite attached to Mahindra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. Cook was very attached to Mahindra, his master. अपने मास्टर से बहुत अटैच था और वो जो है उसको अनकम्प्लेनिंगली, बिना किसी शिकायत के जो है हर जगह पे फॉलो करता था। चाहे उसकी बदली, उसकी शिफ्टिंग, उसको जो है कहीं भी ट्रांसफ़र करके भेज दिया जाता था, महिंद्रा उसके साथ ईश्वरन उसके साथ हमेशा रहता था, चाहे उसको कहीं भी भेजा जाता।
He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वो क्या करता था, उसके कपड़े धोता, खाना बनाता और पूरी रात जो है रात के समय में अपने मास्टर से बातचीत करता रहता था. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. वो क्या करता था, बहुत सारी एंडलेस कहानियाँ, कई बार महेंद्रा जो है उसकी कहानियों को बीच में एंड आने से पहले ही जो है छोड़ देता था. इतनी जो है कहानी बना देता था एकदम से. और बहुत सारी जो है शॉर्ट स्टोरीज भी वो जो है सुनाता था अबाउट अ पर्सन. एनीडॉट्स मीन्स शॉर्ट स्टोरीज अबाउट अ पर्सन ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग जो है बातों को लेकर के जो है वो अलग अलग तरह की कहानियाँ बना देता था. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere, in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन में एक टैलेंट, एक स्किल और भी थी. वो क्या है कि उसके अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी एक क्षमता थी कि वो कहीं पर भी जो है फसलें, वेजिटेबल, सब्जियां वगैरह उगा देता था. कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जो है वो उगा लेता था. सीमिंगली आउट ऑफ नाउ हेयर इन द मिडल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप. एक ऐसी जगह पे जो बिल्कुल एम्प्टी प्लेस है, जो कि बिल्कुल अलग थलग है, एक डेजर्ट एरिया है. वहाँ पर भी जो है पता नहीं वो कैसे जो है ऐसे जो है सब्जियां वगैरह उगाता रहता था. विद नो शॉप्स, जहाँ पे शॉप्स नहीं है. विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, एक दूर तक जो है मील दूरों तक जो है कोई शॉप दिखाई नहीं देती. ऐसे एम्प्टी एरियाज़ में भी जो है वो अपने लिए सब्जियां और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जो उगाता रहता था. ही वुड मिरेक्युलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू workplace. Now, what the author tells us about Ishwaran, that he did his work very miraculously. बहुत ही चमत्कारी पूर्ण ढंग से जो अपना काम करता था. और कंजर अप मीन्स मेक, बनाना. और जो है क्या बना देता था, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाना जो है बना करके, वो जो कि फ्रेश वेजिटेबल से बना हुआ होता था. वो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है कहीं भी किसी भी जगह पर जब भी उनकी शिफ्टिंग होती थी, वहाँ पहुँचते ही जो है 1 घंटे के अंदर अंदर जो है खाना बना करके तैयार कर देता था. एट द जिंक शीट शेल्टर, जो कि उनका रहने का घर क्या होता था, जिंक शीट शेल्टर्स वगैरह कुछ भी हो, वहीं पर जो है अपने नए वर्क प्लेस पर वो जो है खाना तैयार 1 घंटे के अंदर अंदर कर देता था. ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारपूर्ण था. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. महेंद्र जो है सुबह जल्दी उठता था और अपने काम के लिए चला जाता था ब्रेकफास्ट लेने के बाद. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ जो है लंच के तौर पर कुछ खाना लेकर के जाता था. मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और इस दौरान जो है ईश्वरन क्या करता था, पूरी जो उनका घर था, शेड थी, उसको साफ़ करता था. वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता था. एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बड़े आराम से जो है कंफर्टेबली स्नान करता था. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने सिर पर जो है कई बकेट पानी जो है डालता था, उड़ेलता था. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और जो है इस पूरे टाइम के दौरान जो है वो क्या करता रहता था, भजन गाता रहता था. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक जो है उसका लंच का समय हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और इसके बाद जो है वो क्या करता था, पढ़ना शुरू कर देता था. रीडिंग हैबिट थी उसकी, और फिर जब तक उसको नींद आती, डोजिंग ऑफ मीन्स नींद आती, तब तक जो है वो ये सब पढ़ता रहता था. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेज, और उस जो बुक वो पढ़ता था वो कौन सी होती थी, यूजुअली तमिल थ्रिलर, तमिल लैंग्वेज की जो है थ्रिलर बुक्स होती थी, रोमांचक किताबें होती थी. विच वर फुल ऑफ हॉरर. रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जिनके जो है कितने पेजेस होते थे, 100 से भी ज़्यादा जो है पेजेस होते थे. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, और इसका जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होता था इस बुक में,
or narrative flourishes would hold Eshuran to in narrative flourishes means language of the book that appeals language that appeals and humanize the story. एक बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लैंग्वेज में, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लैंग्वेज में जो है विद एक्सप्रेशंस जो है इनको डिस्क्राइब किया जाता था. और इसके बाद क्या होता था, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल. थ्राल क्या होता है? थ्राल मीन्स किसी को जो है कैप्टिवेटिंग अटेंशन, किसी को जो है बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दे देना. और इससे क्या होता था कि ये इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद, जो फैंसीफुल कहानियाँ पढ़ने के बाद, और ईश्वरन जो है ऐसा एक अटेंशन ले लेता था इन चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट लेता था और बिल्कुल उन कहानियों में खो जाता था. हीज़ ओन डिस्क्रिप्शंस और जब वो इन कहानियों में खो जाता था तो उसका जो इमेजिनेशन पार्ट था वो और भी ज़्यादा स्किलफुल हो जाता था. वो जो है और अच्छे तरीके से जो है अपनी कहानियों को बना पाता था और उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो महेंद्र को भी वो कहानियाँ सुनाता था. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और उसकी जो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन भी जो कहानियाँ सुनाता था, डिस्क्राइब करता था उनको जिस तरीके से, वो भी किससे इन्फ्लुएंस्ड था? ऐसे ही तमिल ऑथर्स से जिनको वो पढ़ता था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense. वो जब कभी भी छोटा सा भी इंसिडेंट कोई जो है डिस्क्राइब करता था तो उसको बड़े सस्पेंसिकल वे में जो है करने की कोशिश करता था. एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और बड़ी सरप्राइजिंग एंडिंग जो है उस कहानी की, उस छोटी सी कहानी की जो है रखता था. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वो किस तरह से छोटी सी छोटी बात को जो है बताता था. Instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, जब कभी भी वो ये कहना चाहता कि उसको जो है हाईवे पर कोई अपरूटेड ट्री दिखा, पेड़ जो गिरा हुआ था, जड़ से जो उखड़ा हुआ पेड़ जो है पड़ा हुआ दिखाई दिया, उसको ऐसा कहने की बजाय कि मैंने जो है अपरूटेड ट्री देखा हाईवे पे, वो क्या कहता था? he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. वो क्या करता था? अपनी आईब्रोज़ को जो है पूरी जो है अपनी बोहें तना लेता था, और दूसरा क्या करता था? अपने हाथों को जो है फैला लेता था बाहर की तरफ, पूरी ड्रामेटिक जेस्चर में जो है बोलना शुरू कर देता था. द रोड वॉज डेजर्टेड. रोड जो है सुनसान था. एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस bushy based lying sprawled across the road. और अचानक से मैंने एक चीज़ को स्पॉट किया, फोकस किया कि जो है वो कैसी नज़र आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, एक बीस्ट के जैसी, और जो कि रोड के ऊपर जो है दोनों रोड को पूरी तरह से जो है उसके ऊपर गिरी हुई थी. I was half inclined to turn and go back. मैं आधा जो है मुड़ चुका था वापस जाने के लिए. बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा और नज़दीक आया, आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री. मैंने देखा ये तो गिरा हुआ पेड़ है. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जो कि अपनी सूखी हुई टहनियों को जो है फैला रखा है उसने. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली. और महेंद्र क्या करता था? अपनी जो अपने आप को जो है कैनवस चेयर के अंदर वापस रख लेता था, और फिर जो उसकी अनक्रिटिकली, बिना कोई आलोचना किए जो है उसकी कहानी को सुनना शुरू कर देता था. तो यहाँ पर क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जब ईश्वरन को ये बताना होता कि कोई पेड़ जो है, भारी भरकम पेड़ रोड के ऊपर गिरा हुआ था, जिसने पूरा रास्ता जो है क्रॉस कर बंद कर दिया था, तो वो ऐसा कहने के बजाय जो है उसको किस तरह से पूरे ड्रामेटिक जेस्चर्स के साथ अपनी बोहें तना करके जो है बोलना शुरू करता था कि जो है बहुत ही सुनसान एरिया था और मैं अकेला था, और मैंने एक बहुत भारी भरकम चीज़ लाइक अ बिस्ट, इट वॉज ए बिस्ट की तरह नज़र आ रही थी, जो कि पूरे रोड पर जो है फैली हुई थी. और मैं तो डर करके जो है मुड़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा नज़दीक जा कर के देखा
तो क्या दिखाई दिया कि ये तो एक ट्री था, पेड़ था, अप्रूटेड ट्री था, जिसकी जो है सूखी हुई टहनियाँ जो है इधर उधर फैली हुई हैं, विच वर लाइक लुकिंग लाइक बशी बीस्ट. सो इट वॉज हिज वे ऑफ टेलिंग स्टोरी. और महेंद्र को भी पता होता था कि ये कोई जो है छोटी सी कोई बात है जिसको बताना चाह रहा है, लेकिन वो उसको इतना जो है ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में जो है बताता है कि वो हैरान हो जाता है. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर. जिस जगह से मैं आया हूँ वो किसके लिए फेमस है? लकड़ी के लिए जो है ज़्यादा फेमस है. वहाँ पर जो वुड का ज़्यादा काम होता है. ईश्वरन वुड बिगिन. अब ईश्वरन अपनी बात शुरू करता था. देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है चारों तरफ. द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स. और जो बड़े बड़े लकड़ हैं उनको जो है लॉरीज पर एलिफेंट्स के द्वारा जो है लेकर के आया जाता है. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. और वो कैसे हैं? बहुत ही बड़े जो है पूरी तरह से तैयार बीस्ट हैं, जानवर हैं, बड़े भारी भरकम जानवर हैं, जिनको इसी काम के लिए जो है पूरी तरह अच्छा खाना खिलाया जाता है और तैयार किया जाता है. व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माहौत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम. और जब कभी भी वो वाइल्ड अपनी जो है अपनी उस वाइल्ड नेचर में आते हैं तो उनके जो एक्सपीरियंस्ड महावत होते हैं, महावत कौन होते हैं भाई? जो हाथी की टेक केयर करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं. तो महावत भी जो है उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहते हैं जब कभी भी जो है ये हाथी अपना वाइल्ड जो है फॉर्म अपना लेते हैं. आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. और इस जो है भूमिका के बाद, इस जो है स्टार्टिंग के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद ईश्वरन जो है अपनी कहानी को इस तरह से एलाबोरेटली लॉन्च करता है, स्टार्ट करता है कि जो है वो उसमें एक हाथी को सम्मिलित कर लेता है और अपनी बड़ी सी कहानी को बुनना और सुनाना शुरू कर देता है. वन डे अ तस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड. एक दिन एक तस्कर, एक वाइल्ड एनिमल जो है टिम्बर यार्ड से बच कर के भाग लेता है. एंड बिगिन टू रोम अबाउट. और घूमना शुरू कर देता है. स्टैम्पिंग ऑन बशेज़. और क्या करता हुआ? पुटिंग ऑन बशेज़, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल. वो जो है वाइल्ड क्रीपर्स, बेल वगैरह उनको तोड़ता हुआ, जो टहनियाँ हैं उनको तोड़ता हुआ जो है आगे बढ़ता है. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स. आपको तो पता है सर कि हाथी कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है. व्हेन इट गोज मैड. ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement of his story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of mad elephant. और ईश्वरन जो है इस कहानी में इतना ज़्यादा घुस जाता है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जो है वो इस कहानी को सुनाता है कि वो पूरी तरह से जो है एक्सप्रेशंस और ड्रामेटिक जेस्चर्स दिखाता है अपने. वो भी जो है खड़ा हो जाता है अपनी जगह से और फर्श पर जो है क्या करता है? कूदना शुरू कर देता है. जैसे ही जो है उसका हाथी का कोई भी पॉइंट जो ऐसा बताना चाहता है वो अपने आप भी जो है वैसे ही कूद करके, वैसे एक्सप्रेशन दे करके जो है बताता है. अपने पैरों को जो है स्टैम्प करता है ज़मीन पर, ताकि जो है मैड एलिफेंट का जो एक्सप्रेशंस है उनको अच्छे से वो एक्सप्रेस कर सके. सो वी विल डू इट अप टू हियर today. Tomorrow we will continue this story from here, and the Tusker story which was told by Ishwaran to his master Mahindra. So I am going to give you a brief summary of the story which we have read today. In the story there are two main characters, Mahindra and Ishwaran. Mahindra is a supervisor in a firm whose job is transferable. He is sent to many places to check out the activities on the sites, and his main asset is Ishwaran. It was his domestic servant. He was his domestic servant. He was a very good servant also, as well as he was an entertainer
with it. और जो है इसके साथ साथ वो एक एंटरटेनर भी था. He used to wash his clothes, cook his food, and keep clean his shelter. And after that, at the night time, he works as a TV to him, because he is so much entertaining, and he would tell him many adventurous, जो है many horror stories which are very interesting, with his gestures and different postures. So it was he gives all the expressions with dramatic gestures. So we can say that he was a good narrator of the story, and he gives a small account in a very expressive way to him. If he wants to tell about a uprooted tree which is spreaded on across the road, he would say it in different way. He would tell it like a beast at first, which was very scary. Then he will go to the point. So later he gives an account of the tusker, who is a wild elephant who came in his school. So it will be completed tomorrow. Till that time, stay happy, stay safe.